इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीडियो के इस पार्ट में हम एक बार फिर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल दैट इज चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.3 पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और एक्सरसाइज 12.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सरसाइज 12.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का एंजॉयमेंट कीजिए। In the chapter number 12, area related to circles, exercise number 12.3, here is the question number 7 in the figure. This is the figure. ABCD is a square of side 14 centimeter. So here is ABCD. This is a square having each side 14 centimeter. With center ABCD, these are the vertex of these square. Vertex of this square. A is the center of this first circle. B is the center of this the second circle. C is the center of the third circle. And D is the center of the fourth circle. And these ABCD also vertex of the square. 4 circles are drawn such that each circle touch externally to of the remaining 3 circles. You can see that this circle A touched the remaining 3 circle. First intersecting point, this is the second intersecting point, and this is the third intersecting point. Okay, so find the area of the shaded region. Now a requirement to find the area of this shaded region. So you can say that ABCD is a square and there are 4. This region is known as, what is the region? You can say this is the sector, and this is the other sector for this circle B having center B, and this is the sector for the circle C, third circle, and this is the sector for the fourth circle. Okay, this is the sector of fourth circle. Now dear, secondly you can say that this is the 1/4 part of the whole circle. So 1/4 part of the circle is known as also a quadrant. So this is the first quadrant, this is the 1/4 part of the second circle, so this is the second quadrant, and this is the 1/4 part of the third circle, so this is known as third quadrant, and this is the 1/4 part of the fourth circle, so this is the fourth quadrant. Means you can find the area of this region by the using formula of quadrant, and quadrant means 1/4 part of the circle. Means if you find the area of whole circle and divide it by 4, then you can get the area of this quadrant. Okay, so dear, now we will proceed it as first one is, you can see that this is a square having side 14 centimeter. This is 14. So if it is 14, then you can find the radius of each circle. Means this one is how much? This one is how much? Total is 14. Then you can say that this is 7 and 7. Okay, now required area, this shaded region, how can you find? First of all, we will proceed it as, we will find the area of whole square, that is area of ABCD. After that we will subtract the area of these 4 quadrants, then we will get the remaining area of this shaded region. Okay, so let us start the solution. Means first of all we will write here given things, that is side of square
ABCD, this is how much? 14 centimeter. And if it is a square, then you can say that AB equal to BC equal to CD equal to DA equal to 14 centimeter. Okay, now here we will find the radius of each circle. Therefore, radius of each circle, this is AB by 2 or BC by 2 or CD by 2 or DA by 2, that is 14 by 2, means this is 7 centimeter. Okay, so this is the radius of each circle. Now we will find the area of this shaded region, means area of this part. How can you find? You will find the area of whole square and the area of subtract area of this quadrant, area of second quadrant, area of third quadrant and area of fourth quadrant. So you will write here area of shaded region. Now area of shaded region this just equal to area of square ABCD minus how many quadrant here? 4. So you will write area of 4 into area of one quadrant. Area of one quadrant. Okay. Now you know that area of square. What is the area of square? Area of square is side into side, otherwise whole square of side, minus 4 into area of one quadrant, area of circle, that is pi r square, and area of quadrant means this is 1/4 part of the circle. So you can say that easily that 4 and 4 is cancelled out. Now you put all the values, side of square is given here, you can say it is 14. Okay, and the radius of the square, this is 7. So you put all these value, that is 14 centimeter square minus pi means 22 by 7 and r is 7. You can see this is 7. So 7 into 7 because this is r square, and you will write here centimeter square because this is the area. Now you again see here that is 7 and 7 is cancelled out. Now remaining is 14 square means 196 centimeter square and minus this 22 into 7, how much? 22 into 7 is 154 centimeter square. Now you subtract this each other, you will write what you will get? Yes, of course, 6 minus 4, that is 2, and 19 minus 15, that is 4, and unit is centimeter square. So you can write the final answer of this question. Question number 8, and this one is a track, and question says that I want to tell you once again the statement.
In the figure depict a racing track whose left and right ends are semicircular. This is the semicircular, okay, and the distance between two inner parallel segment is 60 meter, and they are each 106 meter long, and this is the parallel ends. You can see that distance between these parallel ends is, this is 60 meter. आपको ये जो डिस्टेंस दिया है, दिस इज 60 मीटर, okay, and then total this length is given that 106 meter. Then find number one, the distance around the track along its inner, means ये distance आपको बतानी है inner its, that is this one, okay. After that, in the second part, area of the track, means this whole area is also required इनसाइड द ट्रैक, ट्रैक के अंदर क्या क्या ये एरिया है वो भी बताना है. तो हमने क्या किया, दिस फॉर पार्ट नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner its, मींस इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से स्टार्ट किया तो आप देखेंगे ये BC हो गया, BC के बाद फिर ये आर्क, तो हमने यहां पे लिखा आर्क BPE, एंड देन दिस इज नेक्स्ट साइड EH, सो दिस इज द सेगमेंट EH हमने लिख लिया, and CQH, this is the second arc, okay, and this second arc just into the form of सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस के शेप का है, तो आपको यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिखना है, बट दिस इज सेमी सर्कल, सो यू विल राइट द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे, BC you will put directly, BC is given that 106 meter, and plus BP means this is 1 by 2 and 2 pi r means half semicircle, plus EH this is 106, and plus again this is semicircular part, that is 2 into 1 by 2 into 2 pi r. Okay dear, now you clear here what is the radius. If this is whole is 60, ये यहां से लेकर यहां तक 60 है, this one is given that 60, it means this is the diameter of circle, so this one is only is half of 60, means this is 30, so you will write this is 30, means radius is for the semicircular part is 60 by 2 means 30 meter, okay. So you will write all the values. Pi is not given here, so you will put pi equal to 22 by 7. So dear, this is 106, 2 and 2 is cancelled out, and here is 2 also cancelled out. Now pi r and pi r you can add. First of all, you will write all the numbers, that is 106 plus 106 meter, and then pi r plus pi r means this is 2 pi r, and now put all the values. This is 106 plus 106 means 212 meter, plus 2 into pi means 22 by 7, and r is given that 30 meter. So total of this by calculation you will get, this is 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर. अब आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते तो आप यहीं पे इसे छोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर. इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है, क्योंकि पॉइंट में आएगा या तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा. सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ इनर ईड्स, ये टोटल जो ट्रैक का अंदर का ईड्स है उसका लेंथ आ जाएगा 2804 divided by 7 meter, okay. Now in the second part, requirement area of this track is divided in 4 parts. You can say that there are 4 parts. One is the rectangle, second is the semicircle, and third one is the rectangle, and fourth is the semicircle. So you will write area of rectangle means एरिया ऑफ ट्रैक आपको बताना है, तो आप यहां पे लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक
दिस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल की जगह सीधा लिख दीजिए ABCD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल plus again area of this rectangle, that is EFGH, and now this is again semicircle, so area of semicircle, and this is the same, you can write area of semicircle with radius 30 centimeter. So this is the same things, ये दोनों सेम होगा, ये भी सेम होगा. यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, बिकॉज साइड आर गिवन सेम टू सेम. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इक्वल टू जस्ट 2 इंटू एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, एंड इसके साथ आप देखिएगा कि यहाँ पे आपने ये कैसे बताएंगे कि इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा. तो यहाँ पे देखिए वन सेमी सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सेमी सर्कल, एंड हियर इज द वन सेमी सर्कल, दिस इज द सेकंड सेमी सर्कल. तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये एरिया आपका आ जाए. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आप देखेंगे यहाँ पे रेडियस 30 दिया है, और इस टोटल बड़े सेमी सर्कल का एरिया रेडियस कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर. यहाँ भी वही चीज आएगी, ये आपका 30 है और ये 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 40 हो जाएगा, 40 मीटर. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू फॉर दिस केस. Yes, you will find the area of larger circle minus area of smaller circle, then you will get the area of this track. Similarly, you can do here area of larger circle minus area of smaller circle, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ट्रैक बचेगा. तो आपका ये ट्रैक हो जाएगा. तो उसको उसी फॉर्म में आपको लिखना है कि किस तरह से ये आ जाएगा. तो आप इसे ऐसे करके कर लीजिए, माइन प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर हमने कैपिटल कर दिया बिकॉज आर इज गिवन दैट. अब हम यहाँ पे इसको कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये आर लिखा था, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं. कैपिटल आर हो जाएगा 30 प्लस 10, दैट इज 40 मीटर. तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एंड अगेन प्लस पाई आर स्क्वायर फॉर दिस सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ये इस तरह से आप इसका ट्रैक का एरिया पता करेंगे. ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये कितना हो जाएगा. यस ऑफ कोर्स, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज गिवन 106 एंड ब्रेथ इज गिवन 10, तो 106 इंटू 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये तो सेम ही चीज लिखी हुई है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 212 और 0 है तो 0 मीटर स्क्वायर. प्लस यहाँ पे 2 इंटू पाई मीन्स आप देखिएगा 20, पाई चाहो तो कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया हमने पाई, और पाई का वैल्यू भी पुट कर दिया 22/7, और यहाँ पे आर है तो ये 40 स्क्वायर और माइनस इधर स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 30 मीटर स्क्वायर. तो अब आप देखें ये तो सेम टू सेम उतना ही रहेगा. प्लस 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44/7, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 का स्क्वायर करेंगे 00,
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 और ये भी आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर में से 1600 में से आप 900 को माइनस कर दीजिए। तो 1600 को 900 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 700 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 44/7 ये हो गया इंटू 700 मीटर स्क्वायर। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा 100 हो गया। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यस ऑफ कोर्स यू विल गेट 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 44 into 1 that is 44 और 00 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस, दोनों को प्लस कर दीजिए तो प्लस करने से आपका आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर और ये ही इस ट्रैक का एरिया हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है कि ये जो ट्रैक का एरिया फाइंड कर रहे हैं, आप देखिए ऊपर डायग्राम में दिस इज द ट्रैक, तो यहाँ पे क्या सर्कल है, सर्कल तो नहीं है, क्या है यहाँ पे सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब है कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पे होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी 2 होगा। तो अब आप देखेंगे ये 2 कॉमन ले लीजिए तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहीं पे। तो आप जब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये 2 नहीं आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7, मतलब ये 22/7 ही रहेगा यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पे आ गया 22/7, 7 से 7 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 ही आएगा। 2200 को जब आप इससे प्लस करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि 21 और 22 कितना होता है, 21 और 22 43 ही होता है और ये 20 और है तो 43 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 22/7, यहाँ पे 2 लिखा था वो हट गया और 2 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो 44 लिखा था, 44 की जगह 22/7 हो गया और 22/7 में 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 हो गया। 22 ये और 21 ये, 21 और 22 को प्लस करेंगे तो 43 हो गया और 20 और 00 को प्लस करेंगे तो 20 रहेगा, नहीं 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो एरिया है ट्रैक का उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा था एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे सेमी सर्कल 2 है, एक तो ये सेमी सर्कल है, आप देख सकते हो इनर सेमी सर्कल एंड आउटर सेमी सर्कल। इनर सेमी सर्कल हैविंग द रेडियस 30 एंड आउटर सेमी सर्कल हैविंग द रेडियस 30 + 10 मीन्स 40। तो यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिख दिया, कैपिटल आर मीन्स 40, स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल आर मीन्स 30। तो यहाँ पे ये सेम ही चीज है, मान लो ये x है और ये x है, x और x को प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 लिखा। और 1/2 सभी जगह है, 1/2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 9 को, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हियर क्वेश्चन नंबर 9। सेवन सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन। तो आप देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया है कि ये आपका सर्कल है और इस सर्कल में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर है, ये आपका सेंटर है इसका
और यहां भी एक सर्कल दिया हुआ है, स्मॉलर सर्कल। इसका सेंटर ये है, और क्या इसका रेडियस होगा पता नहीं, बताया नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। और यहां पे ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और आपको पता क्या करना है, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको बताना है। ये टोटल आपका शेडेड रीजन है, बस इतने का एरिया आपको बताना है, मींस एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस पार्ट। तो कैसे बताओगे आप? देखो यहाँ पे जो नाम दिए हैं वो मैं लिख देता हूं। हियर इज गिवन दैट OAB, this is A, this is B, and this point is O, and this one is C, and last one is D. Okay, given here in this question OA equal to 7 centimeter only, बस इतना ही दिया है। बाकी स्टेटमेंट में दिया है कि OD डायमीटर है और यहाँ AB भी डायमीटर है। तो आप देख सकते हो, सिंस AB is a diameter, therefore AB equal to 2 into OA means 2 into 7, that is 14 centimeter. And you know that, and OD is also a diameter, therefore a radius of smaller circle, this is just OD equal to OA by 2, क्योंकि ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, OC भी रेडियस होगा, है ना। तो यहाँ पे OD का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना वैल्यू OA का है, तो OA का आपका हो जाएगा, OA जितना, ये सभी वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ऑल आर 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बाई 2, इन सब का हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/2 मीन्स 7/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। चूंकि टोटल रेडियस डायमीटर 7 हो गया, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी 7 होगा, चूंकि ऑल आर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, तो डायमीटर हो जाएगा 7/2। 7/2 हमने लिख लिया। अब आपको रेडियस, इसका शेडेड एरिया चाहिए, तो आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दिस इक्वल टू, क्या करना है, कैसे फाइंड करोगे, एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल इसके बाद में क्या करोगे, ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूरा पता कर लीजिए, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे, यहां पे प्लस करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। ओके, सो नाउ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, एंड प्लस एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, तो ये OA क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, आप ध्यान देना, तो सेमी सर्कल मींस 1/2 पहले ही लिख लिया, और फिर सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो डियर, you know that you have to learn in class 9
एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एबीसी कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, है ना। ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे सॉरी ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, इससे कोई मतलब नहीं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कोई भी ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आपको मिल ही रहा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो वही वाला यूज कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना होगा? ए बी, और हाइट कितना हो जाएगा? ओ सी। Now put all the values. So pi means here you will put 22/7, and r is given that 7/2, and you write this 2 times 7/2, 7/2 plus 1/2. Pi means again 22/7, and r, capital R is given here 7. So you write 7 into 7. Why this is 7? R square, pi square. So ये r square है तो 7 7 लिख लिया, minus 1/2 into AB means this is total 14, तो यहाँ 14 भी लिख लिया, एंड OC दिस इज जस्ट इक्वल टू 7, तो आपका हो जाएगा ये 7/2 नहीं, 7/2 तो रेडियस है, ये OC आपका OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD सभी 7 7 हो जाएंगे, तो ये 7 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ गया, इधर भी 2 से ये 11 आ गया, इधर 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 7। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा? 11 7 जा 77, ओके, एंड प्लस यहां पे देखेंगे तो क्या बचा? 11 इंटू 7, तो 11 7 जा 77, ठीक है, और प्लस माइनस, देखिए माइनस में कितना है? 7 7 जा 49, और ये सब क्या है? एरिया है, तो एरिया किस में है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 2 और बचा हुआ है, इसे 2 को आपको लिखना है, तो 77/2 करेंगे इसे, ठीक है। तो आप देखो तो चाहो तो इसे पॉइंट में फाइंड कर दो, तो 77 क्या हो जाएगा? 36.5 और 38.5, 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, और प्लस 77 में से चाहो तो 49 माइनस कर लो, तो 7 में से 9 कर पाओगे? नहीं, 17 में से 9 माइनस करो तो 8 आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आ गया। अब इसे आप प्लस कर लो तो 0.5 तो सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पे 8 and 8 16, और यहाँ पे 2 and 3 5, और कैरी 1 6, तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये सैडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि किस किस तरह से करना है। डायग्राम में आपने देखा कि डायग्राम में आपको ये सैडेड है और ये सैडेड पार्ट है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए तो आसान है कि आप एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल फाइंड करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो इस सैडेड रीजन के लिए आपको पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना होगा पूरा ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी, तो एबीसी माइनस कर लिया। अब एबीसी है आपको देखो ये परपेंडिकुलर हाइट तो मिल ही रही है, और ये आपका क्या है? डायमीटर है, डायमीटर 14 होता है। ये परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना, 9th में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए ये तो परपेंडिकुलर होगा ओसी, तो आप सीधा लगाएं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने लिखा इतना। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई आप जैसे भी करें, वो तो सिंप्लीफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आपको इजी लग रहा है वैसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आ गया
66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपने अभी जो क्वेश्चन पढ़े 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आगे भी अभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है कुछ। So dear